Okay. Good afternoon, everyone. Meet our expert of this session, Dr. Girish Singh Mahara sir. He is currently working as a ARS scientist at Agriculture Extension Department at ICR, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. If I'm talking about his academic, then he received Vice Chancellor Gold Medal and Ram Siromani Tewari Award for Best Graduating Student of University in UG at GB Pantnagar 2006 batch and Binani Gold Medal for securing highest OGPA in PG at BHU Varanasi for 2012 batch. His core areas of specialization are agriculture education, ICT, and communication. More than 25 research papers, 30 popular articles, and 25 book or training manual chapters were accredited in his account. He had presented papers in several national or international conferences, seminars, and had won Best Paper Award 6 times. He has received Young Scientist Award and Best Research Scholar Award from Mobilization Society. Not only this, he is also a professional motivational speaker and an academic YouTuber. He has also represented universities in national debates and organized many public speaking workshops for youth. Recently, he has authored one book that is named Extension Education Ready Recorner book, specially designed for ARS aspirants. On the behalf of organizing team, SJIDT Patna, NADCL Baramulla, Jammu and Kashmir. So I welcome you for this session. Thank you for joining us today. Now over to you, sir. Thank you so much, ma'am. I'm audible to you and my PowerPoint presentation is visible to all? Yes, sir. Everything is good. Okay, thank you so much. And dear organization, thank you, organizers. Thank you so much for giving me this golden opportunity to interact. And since it's a rainy day, so I have closed my camera because internet is little bit weak so that my voice is clear to you. And I hope PowerPoint presentation is visible and I'm audible. So let's get started. Then we can have a few minutes after this session. We can interact with each other. At that time, I will open my video so that we can have face-to-face communication. So the topic today is very interesting, and the topics which were going on, it is quite different from these topics. So you were talking of dairy sciences, the technology involved in dairy, but be it any sciences, whether it's agricultural sciences or subset of agriculture, whether it is engineering, medical, any sphere of life, the most important assets for any person is the dealing, the soft skills, how you project your personality so that you get recognized and your work get recognized by the audience. So this is very important and challenging task. You might have seen many people who are wonderful researchers, who have very good research paper, who have handled very good projects. They're good researchers, but when it comes to teaching in classes, students rate them as poor teachers. And on the other hand, there are another set of people who do not have that excellence in research and academics, but students rate them as one of the best teachers. Right? It's not about the amount of knowledge you have. It depend on how you are presenting your knowledge so that your audience get connected with you. Right? So topic today is very important: soft skills for professional excellence. Not only in dairy sciences, but in any profession, these soft skills are very needed. We will see what are the important soft skills and how you can inculcate in your life. Right? So if I'm audible, PowerPoint is visible, let's get ahead. Please, anyone can give me yes, sir, that it is visible and audible so that I can get ahead. Yes, anyone? Give me a cue that my PowerPoint is visible and I'm audible. I'm audible to you. Hello. Yes, sir. You are audible. Acha, People are. audible. Right. Right. Okay, let's get started. So the most difficult thing in life is to know yourself. ठीक है? Thales ने कहा कि the most important difficult thing in life is to know yourself, and it's true, right? In whole life we are busy to know others, we are busy to know the science, but have you tried to know yourself?
This is very important, right? We will see. Any one of you, ma'am, they can interact with me in between. If I ask any question, they can unmute themselves and they can speak. Jannat ma'am? Jannat ma'am, they can speak. Participants can speak. They can unmute and they can speak in between. Participants, are you able to unmute yourself or mute yourself? No, I think no, sir. Okay, meanwhile, Okay. I'm connecting to technical team. No, no Please problem, no problem, no problem. Then also, but they are able to see the PowerPoint and they are audible. My voice is Yes, audible to them, right? yes, yes. Okay, okay. So मैं इसको खुद ही one way कर लेते हैं. Then at the time of interaction we can have that this session. So the photograph which I am showing is, you all know this person, Albert Einstein, one of the great physicists of our time, right? And if you see, if you open this question to anyone, हम बहुत सारे workshop students की कराते हैं, professionals की कराते हैं. When we ask this question, can you give an adjective for his personality? So लोग adjective देना शुरू करते हैं. कोई कहता है genius, कोई कहता है intelligent, कोई कहता है sharp, है ना? So everybody gives positive adjective about Albert Einstein. But let's see what are the adjective given by the people around Einstein. So on one hand, there are set of people who have given Einstein as positive adjective like brilliant, Sir, sharp, smart. sir, Yeah. sorry for interrupting. Now participants are unmuted, so Acha. Okay, they no can problem. interact with you. Yes, it can be an interactive session then, right? Okay, sir. So adjective you see, generally the people gives to Albert Einstein as brilliant, sharp, smart, acute, advanced, alert, the yellow color in the PowerPoint. They are positive. But on the other hand, there are certain people around Albert Einstein who have given the adjective of clever, egg-headed, quick-witted, unpredictable, lost, unpatriotic, chaos, mismanaged, unfaithful. See, and the 2, 3 adjectives are given by his wife: mismanaged, unpredictable. And you all know that once there was a birthday of Albert Einstein, and he was a very famous physicist, so many scholars came to celebrate his birthday, right? And at the time of cake cutting, जब केक कट करने ही वाला था, इनके हाथ में वो दिया गया, knife. So at that time, Einstein said, "Just give me 1 minute. I'm going to my room, and I will be back in just 2, 3 minutes." So everybody waited that Albert Einstein is going in room and he will come back. And you know when he came back after 7 days of that room, right? So unpredictable. Okay? And when he came out of that room, he has E is equal to MC square written or some formula written on his paper. So that kind of keenness he has. So but you can see from here that हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, लोग अच्छा ही सोचते होंगे, right? You have friends around you, they can give you good adjective, but there are people who can give you some negative adjective also. It's very difficult to understand people. It's very difficult to understand the perception of people towards ourselves, right? So ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि, and now if you see, this is very interesting. Now it is, then हम soft skills में आएंगे, how you can come up, right? So why it is so difficult to understand your own and others personality? अपने आप की personality को समझना और दूसरे की personality को समझना क्यों कठिन है? Why it is so difficult to understand your own personality and others personality? So participants, you can unmute yourself, mute yourself. When I will say that you want to share something, then only you unmute. Otherwise some sounds are coming to me and it will create disturbances, right? हाँ, या म्यूट कर लीजिए आप सब लोग अपने को, है ना? राइट. या प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट फ्री फ्लो में चलेगा. जब अनम्यूट करने के लिए मैं कहूंगा तभी अनम्यूट कीजिएगा अपने को, ठीक है? सो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर ओन अदर पर्सनालिटी. ठीक है, आप लाइफ में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल चाहिए होती है इंटरेक्शन के लिए, राइट? सो व्हाई इट इज डिफिकल्ट? तो पहला तो देखिए आपने, मैंने एक चित्र लगा रखा है, आई हैव गिवन अ पिक्चर इलस्ट्रेशन. पीपल पुट मास्क and you will agree with me. Okay, so we have different type of mask we put on different type of emotions. For example, if you are going in a place where sorrow is there, कोई गुजर गए हैं, है ना, किसी की डेथ हो गई है, so at that place you will pull a mask which is very sad. ठीक है, even the person who has died, you do not like that person, but still you will wear a mask and say, अरे यार बहुत बुरा हुआ, ये तो सत्य है, सबके साथ ऐसा होना है. That kind of thing you will manage. And if you are not happy to go in any event, but anyhow it's compulsion. In offices many times there are certain events where we do not go by our wish, we have to just go by compulsion.
राइट. सो उस समय हम कैसा मास्क लगा के जाते हैं, सो दैट वी आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी enthusiastic about a program. So we are putting mask. So God has given this gift to humans only. Animal cannot put mask. शेर है तो शिकार करता है, राइट, वो कभी मास्क नहीं लगाएगा, राइट. जो जानवर है उसका जो बिहेवियर भगवान ने दिया वो वैसा ही बिहेव करता है. बट इंसान एक ऐसा सोशल एनिमल कहा गया, इंसान को ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अपने इमोशंस के ऊपर पर्दा डाल सकता है. सो माई हार्ट फीलिंग इज समथिंग एल्स, बट माई इमोशंस, माई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिपिक्टिंग समथिंग एल्स. सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट. सेकेंड, ये देखिए एक चित्र मैंने दिखाया, आप थोड़ा हंसेंगे भी. मी ऑन सोशल मीडिया वर्सेस मी इन रियल लाइफ. यू कैन सी, यू कैन कंपेयर. दिस इज मास्किंग, है ना. What is happening in my life in social media, everybody is giving the image that they are very happy, very prosperous, they do not have any challenges. So second is the parenting. How you have been nurtured, how your parenting has been. If your parenting, your childhood is very rough, then you will also become that kind of stubborn person. But if your childhood is very loving, बहुत अपनापन था, so you will grow as a sensible person. And your own experiences, आपके खट्टे मीठे अनुभव. So your own experiences, your parenting, and habit of putting mask, this shapes your whole perception about a thing, है ना, जिसको हम एक्सटेंशन साइंस में कहते हैं परसेप्शन. सो परसेप्शन इन 3 फैक्टर से आता है और ये सबके साथ आता है. Sometimes people coming from a particular state, if you have a bad quarrel with that person, we have a stereotype that people coming from that state are always like this, है ना, हम स्टीरियोटाइपिंग कर लेते हैं. सो ये हमारा परसेप्शन बन जाता है. सो योर ओन एक्सपीरियंसेस, योर पेरेंटिंग, योर मास्किंग, दैट हैबिट्स मेक्स योर परसेप्शन. दैट्स व्हाई देयर इज अ difference in perception. So you can see the illustration, the old man saying that it is 9, the young child is saying it is 6. Both are right, but the difference here is only perception. So your emotional, mental, physical, spiritual, social factors which personal development के लिए आपका आता है, परसेप्शन शेप करता है. तो the first soft skill which I want to focus here is you should respect the perception of others. Please note it down. Always have the habit of respecting the perception. For example, in your office situation, many times it happens, you are the coordinator of any training program and you have a team. Now your subordinate has a different view of organizing the session and you have a different view on organizing session. And this view is coming from your prior experiences, right? Your teaching, your training. Now you should respect the perception of others. ठीक है, और उनके परसेप्शन को आप रिस्पेक्ट करना सीखिए, एक बार समझिए, डिस्कशन कीजिए. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. अगर ये आप सीख जाएंगे तो आपका आधा द्वंद्व तो जीवन का वैसे ही खत्म हो जाएगा. एंड इन होम ऑल्सो मेनी टाइम्स आप सुनते हैं ना कि बहुत सारे मुझे याद आ रहा है एक हास्य कवि हैं हरियाणा के, सुरेंद्र शर्मा जी. पति पत्नी पे चुटकुले सुनाते हैं हमेशा ना, उनको पद्मश्री भी मिला है गवर्नमेंट से. वो आप समझ रहे हो ना, बड़ा पोकर फेस बना के सुनाते हैं कि 4 लाइना सुना रिया हूं, एक बार मारी कढ़ारी बोली, ऐसे करके सुनाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं वो, राइट. तो परसेप्शन का वो कविता लिख के लाते हैं पूरा. सो द परसेप्शन माय वाइफ इज हैविंग एंड आई हैव अ डिफरेंट परसेप्शन and the whole quarrel starts on that perception. So if you are respecting the perception of others, you are listening to the perception of others, then most of the problems are sorted out. So the first soft skill here I want to pitch is you should respect the perception of others. फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा तो पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा म्यूट कर लें. मुझे बहुत सारी आवाजें इधर आ रही हैं. So I request again to mute yourself so that disturbance now flow not to take, right? So respect the perception of others. आप दूसरे के परसेप्शन को रिस्पेक्ट करना सीखें. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल. ठीक है. Second, now you will be wanting to know from where these soft skills or personality factors affecting our personality, which are very much needed to understand the soft skills, are coming. You all have heard Maslow hierarchy of needs, right? Any one of the participant want to share? मैडम थोड़ा सा एक नॉइज आ रहा है मुझे किसी के माइक से, आप उनसे कह देंगे थोड़ा सा म्यूट करने के लिए प्लीज. कोई अनम्यूटेड हैं और थोड़ा दूसरा काम कर रहे हैं कोई ना. राइट, राइट. So any of the participants, if you can unmute yourself, have you heard this term Maslow hierarchy of needs? कहीं पढ़ा सोशल साइंस में, कोर्सेज में पढ़ा होगा, सोशल साइंस का, एक्सटेंशन का कोर्स का, साइकोलॉजी का कोर्स का. एनीवन?
या सर एजुकेशन एक्सटेंशन में पढ़ा है। Yes, yes, yes. This is very important to understand. है ना? Maslow hierarchy of needs is very important. Yes. ये सर देखिए तो किसी का माइक ऑन है, जरा इनको रिक्वेस्ट कीजिए तो प्लीज, थोड़ा सा अनम्यूट कर लेंगे अपने को। ये साक्षी मैम, साक्षी पुनिया मैम, साक्षी पुनिया मैम, साक्षी पुनिया मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने को। यस यस, थैंक यू मैम। राइट, हम कहा था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में थे। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार हल्का सा रिवीजन कर देता हूं मैं आपको आधे मिनट में। तो मैस्लो ने नीड्स, जो हमारी ह्यूमन नीड्स हैं, ही हैज क्लासिफाइड आवर नीड्स। उन्होंने कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार साहब की बहुत पुरानी बहुत ही अच्छी पिक्चर है रोटी कपड़ा और मकान, आप देखिएगा, उसमें इसी का दिखाया है, रोटी कपड़ा और मकान। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वंस योर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, देन यू विल थिंक ऑफ सेफ्टी नीड्स। नाउ food, air, water, shelter is sure, so you will think that where I will live there should be safety. Once safety need is fulfilled, you will think that you should have a family, you should have a children, you should have a love, belonging, family, siblings. Once this need is also fulfilled, social need, then you will think that let's become an IAS officer, let's become professor, head of the department, director of the institute, like esteem need. So once your esteem need is also fulfilled, then comes the most important triangle, that is self actualization. देन सब कुछ देख लिया जीवन में, तो अब लगता है कि यार मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, फिलोसॉफी जिसको हम कहते हैं, वो लास्ट ट्रायंगल है। बहुत कम लोग वहां जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद वेंट देयर। गौतम बुद्धा इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस ट्रायंगल। गौतम बुद्धा को देखिए, राजा सिद्धार्थ थे, किंग सिद्धार्थ थे, प्रिंस थे, एवरीथिंग फिजियोलॉजिकल नीड, सोने की थाली में खाना आ रहा था, ठीक है। जो अभी अनंत अंबानी की शादी का माहौल हम देख रहे हैं, वैसा ही उनके घर में रहा होता होगा, हमेशा ऐसा रहता होगा, राइट। सो नो डर्थ ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। सेफ्टी नीड, पूरी सेना की टुकड़ी उनके साथ जाती थी, सो सेफ्टी, ही वाज हाईली सिक्योर पर्सन बिकॉज ही वाज द प्रिंस। देन लव एंड बिलोंगिंग, बहुत ही कम समय में उनके एक बहुत ही सुंदर कन्या से शादी कर ली उनके पेरेंट्स ने, उनका एक बालक था, सारा उनको पूरा देश, उनको सिटीजन सब प्यार करते थे, गौतम किंग सिद्धार्थ को। सो लव एंड बिलोंगिंग। एस्टीम, जहां की तरफ राजकुमार निकल जाए वहां सब सर झुका लें। सो एवरीथिंग गौतम बुद्धा हैज, बट व्हाट मेड हिम टू बिकम गौतम बुद्धा? व्हेन ही सॉ अ डेड पर्सन, एक अर्थी जाते हुए देखी उन्होंने, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, राइट। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा। थ्री थिंग्स ही हैज सीन इन हिज लाइफ, एंड ऑल द एस्टीम, लव, बिलोंगिंग, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड बिकम्स जीरो, एंड ही वेंट इनटू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सब कुछ छोड़ के ध्यान में चले गए। सो दिस इज द ट्रायंगल व्हिच गवर्न्स अवर लाइफ। अगर हमने इस ट्रायंगल के डिफरेंट जोन्स को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपने अपने सॉफ्ट स्किल्स को कंट्रोल करना सीख लिया। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को कंट्रोल कर लेंगे अगर आप सबको समझ लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, राइट। देखिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। कबीर जी ने ऑलरेडी सेड कि भूखे भजन पेट तो गोपाल के भजन भी नहीं हो पाते, यानी फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड आर सेटिस्फाइड, देन ओनली यू विल गो फॉर हायर नीड, राइट। तो फर्स्ट सॉफ्ट स्किल मैंने आपको बताई, रिस्पेक्टिंग द परसेप्शन ऑफ अदर्स। सेकंड सॉफ्ट स्किल्स आ गई, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स पर्सनालिटी। अब आपका दूसरा सॉफ्ट स्किल आ गया लाइफ में कि लोगों को डील कैसे करना है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू डील पीपल रादर देन वर्क। काम कितना भी कठिन हो, आप सब लोग कर सकते हैं, लेकिन काम में अगर कोई टेढ़ा व्यक्ति फंस गया आपके साथ, तब काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट्स प्रॉब्लम लाइज नॉट इन वर्क, प्रॉब्लम लाइज इन पीपल। ये मैनेजमेंट में कहते हैं, हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम वर्क के साथ नहीं है। चंद्रमा तक चंद्रयान भेज दिया भारत ने, वो सब आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इंसान को डील करने में। सो सेकंड सॉफ्ट स्किल जो आपको लाइफ में चाहिएगा, किसी भी पोस्ट में जाएंगे, लीडरशिप में आगे जाएंगे, कि अपने आप को समझना है और दूसरे की पर्सनैलिटी को समझना है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स पर्सनैलिटी। तो अब देखते हैं कि पर्सनैलिटी को कैसे समझा जाए। सो पर्सनैलिटी इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सोना का मतलब ही मास्क है। अब आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि पर्सनैलिटी का मतलब ही क्या है? मास्किंग। इट मींस पर्सनैलिटी इज द फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर विच यू पुट अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स। यानी आप किसी शोक सभा में गए तो क्या मास्क पहन के गए? दुखी का मास्क पहन के गए, ठीक है। आप हैप्पी कवि सम्मेलन में गए, हास्य कवि सम्मेलन में गए, हंसी वाला मास्क पहन के गए। जीवन में बहुत दुख है, लेकिन आप हंस रहे हैं, हंसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ वाले हंस रहे हैं।
ठीक है, आप मन से बड़े प्रसन्न हैं कि चलो ये गुजर गया, धरती से एक बोझ कम हुआ, लेकिन शोक सभा में गए तो आप दुखी के साथ दुखी होने का चेहरा बना रहे हैं बिकॉज आप मास्क पहन रहे हैं, राइट? सो दिस इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को आप इसलिए जज करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन टैक्टिक्स बाय विच 100% किसी की पर्सनैलिटी को नहीं जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आप पर्सनैलिटी का ले सकते हैं अगर इन सॉफ्ट स्किल्स में ध्यान देंगे। एक थ्योरी आप नोट कीजिए, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू बिल्ड द सॉफ्ट स्किल्स ऑन इट। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी दी जिसको कहा उन्होंने सिगमंड फ्रायड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रायड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने कहा कि अवर पर्सनैलिटी हैज 3 पार्ट, यू कैन सी द डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज लाइक आइसबर्ग। आइसबर्ग, ठीक है, टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी है तो टाइटैनिक एक ये बर्फ के खंड से ही टकराया था, आइसबर्ग से टकराया था। सो द टाइटैनिक शिप got collided into iceberg, and the quality of iceberg, property of iceberg is like this: the 10% of the iceberg is revealed, 90% is hidden inside water. इसलिए डेंजरस होता है आइसबर्ग, क्योंकि ऊपर से आपको जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा वो समुद्र के पानी के अंदर होता है। यही टाइटैनिक्स में भी गलती हुई थी, राइट? सो दिस इज द आइसबर्ग, इट हैज 3 पार्ट्स, सुपर ईगो, इड एंड ईगो। तो सुपर ईगो जो होता है ये आपका आदर्श वाला पार्ट है। सुपर ईगो इज द राम ऑफ पर्सनैलिटी। सुपर ईगो इज द आइडियल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी विच टेक्स आइडियल डिसीजन। आईडी लिखा है मैंने, आईडी है ना थ्योरी में, आईडी मीन्स इड। id is the, you can say, Ravan of your personality. It is the animal instinct, the pleasure instinct of your personality. ये हमेशा आपको गलत काम करने के लिए उकसाएगा। सुपर ईगो हमेशा आपको अच्छा काम, मॉरली ड्रिवन फोर्स है, मॉरल कंपास में काम करने के लिए कहेगा सुपर ईगो। इड आपको गलत कार्य करने के लिए कहेगा। ईगो इज मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन सुपर ईगो एंड इड। सुपर ईगो और इड के बीच में ईगो बैलेंस बनाएगा। अब आपका सॉफ्ट स्किल्स आ रहा है। अब सॉफ्ट स्किल क्या छिपा है यहाँ पर? सॉफ्ट स्किल छिपा है कि आप अपने सुपर ईगो को लिख लीजिए, कॉपी अगर आपने रखा है। ऑलवेज एंड ऑलवेज नर्चर योर सुपर ईगो। हमेशा सुपर ईगो को नर्चर कीजिए। अब आप प्रश्न पूछेंगे, नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू नर्चर सुपर ईगो? मैं आपको बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए, ईगो, सुपर ईगो एंड इड। इड इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, सुपर ईगो इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो इज मेकिंग अ बैलेंस। इसको एक एग्जांपल से समझिए, राइट? यहां पर मैं आपको ये दिखाता हूं, एक एग्जांपल से यहां पर समझिए कि राइट, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। यू आर इन ग्रेव नीड ऑफ मनी, ठीक है, आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू आर अ ग्रेव नीड ऑफ मनी। एट अ क्वाइट प्लेस इन नाइट यू गॉट अ बैग फुल ऑफ मनी, ठीक है, रात को एक अंधेरे सुनसान जगह में आपको एक बैग, पैसे से भरा हुआ बैग मिल गया। नाउ व्हाट यू विल डू? नाउ देयर विल बी 2 वॉइसेस, 2 आवाजें आएंगी आपके अंदर से। वन वॉइस विल से कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री and legally and ethically you should hand over this bag to the police, ठीक है, ये आवाज आएगी। ये आवाज आपकी कहां से आई? सुपर ईगो से। ठीक है, अब आपका इड, आईडी, इड जो नेगेटिव पार्ट है वो भी तो कुछ कहेगा। नेगेटिव पार्ट क्या कहेगा? सबसे पहले कहेगा सीसीटीवी कैमरा चेक करो, यहां पर है तो नहीं। आप चेक करेंगे कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। नाउ दैट इड विल से देयर इज नो कैमरा, देयर इज नो पर्सन वॉचिंग यू, इट्स नाइट 2 AM, लेट्स, यू आर इन ग्रेव नीड ऑफ मनी, लेट्स टेक दिस बैग। भगवान ने आप ही के लिए ये बैग छुड़वाया किसी से, राइट? इस तरह की दलील देगा। लेकिन फिर आपका सुपर ईगो काउंटर करेगा, ईगो काउंटर करेगा, सुपर ईगो काउंटर करेगा, ईगो काउंटर करेगा, एंड हु विल टेक द डिसीजन? ईगो। ईगो विल टेक अ डिसीजन। ईगो हो सकता है डिसीजन ये ले ले कि आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो इस बैग से 2 लाख रुपए निकाल लीजिए और बाकी यहां पर छोड़ के निकल जाइए। ईगो ये डिसीजन ले लेगा। अगर सुपर ईगो की बात सुनेगा, कहेगा नहीं, कितना भी कष्ट आए जीवन में लेकिन ईमानदारी की राह में चलो, और आप चले जाएंगे। इड की सुन लेगा ईगो, तो पूरा बैग उठा के आप निकल जाएंगे। सो नाउ दिस हैपेंस इन ग्रेट डिसीजंस ऑफ लाइफ, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इजी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जो बुक्स में मेंशन्ड है, right? But it's very difficult to sometimes decide what is ethical, non-ethical, because it is very dominating part of personality. Super ego is the ideal part of personality. Super ego दिल की आवाज है, id दिमाग की आवाज है, ठीक है, और डिसीजन लेना है ईगो। अब अगर आप सुपर ईगो को नर्चर करेंगे, नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू नर्चर सुपर ईगो? सुपर ईगो नर्चर होता है आपके हैबिट से। यू शुड हैव अ गुड हैबिट। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को इंटेलिजेंस से ज्यादा संस्कारी बनाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉट फोकस ऑन द एकेडमिक्स ओनली, बट फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग। एंड देयर इज अ वंडरफुल कोट बाय स्वामी विवेकानंद,
उन्होंने कहा कि whenever there is a conflict between brain and heart, जब भी दिल और दिमाग के बीच में टकराव हो, so you should always listen to heart because from heart the Lord speaks. उन्होंने कहा हमेशा दिल और दिमाग के टकरार में दिल की सुने, क्योंकि दिल से भगवान ईश्वर की आवाज आती है और दिल से किसकी आती है? सुपर ईगो की आवाज आती है। इड कहां से काम करता है? दिमाग से काम करता है, राइट? सो नर्चर कीजिए अपने, तो लिखिए सॉफ्ट स्किल्स क्या होनी चाहिए? यू शुड नर्चर गुड हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, गुड हैबिट्स ऑफ हैविंग अ गुड रूटीन, waking up in morning early, having a good मूड, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, है ना? अगर जो भी आध्यात्म को मानते हैं, थोड़ा सा आध्यात्म भी करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, लोगों का उत्साह बढ़ाएं, नेगेटिव ना रहें। आप देखेंगे कि आपका सुपर ईगो स्ट्रांग होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा सुपर ईगो स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा हैंडलिंग आपके लोगों की हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आप आते हैं, चौथा सॉफ्ट स्किल्स की तरफ आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं जोहारी विंडो। Anyone of the participants can unmute and tell me if you have heard this term, Johari window. Anyone? किसी ने सुना है जोहारी विंडो? कहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes, great. So जोहारी विंडो, Yes, sir. yes ma'am, कहाँ पढ़ा मैम? Sir, I was in a training program at SIA. Their National School of Business Management, Bangalore, has given a Yes. training program on this communication skill. Very good. So there I have learned about Yes. this Johari window. Yes. तो आइए आप और ट्रेनिंग्स को भी समझाते हैं। So Johari window is a wonderful window given by two American psychologists, Joseph Luft and Harry Ingham. ठीक है, डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन ये इस तरह का सेल्फ है। देयर आर 4 पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है? वन पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज कि पीपल नो अबाउट मी एंड आई ऑल्सो नो अबाउट मी, यानी देयर आर सर्टेन ट्रेड्स ऑफ माई पर्सनालिटी विच आई नो about myself, with other people also know about myself. For example, my communication skills. If I am a good communicator, I am knowing that yes, on mic I can speak well. I have a good command over English. I have a good command over Hindi. मुझे पता है, और लोगों को भी पता है कि ये डॉक्टर साहब अच्छा बोलते हैं, राइट? सो इट्स अ पब्लिक डोमेन, जो हम कहते हैं ना कि पब्लिकेशन आ गया और पब्लिक डोमेन में आ गया, सो एनीबडी कैन एक्सेस. सो दिस इज योर ओपन सेल्फ, द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी विच इज नोन टू यू एंड नोन टू अदर्स इज ओपन सेल्फ, ठीक है? सेकंड आता है ब्लाइंड सेल्फ, नाम से ही पता चला ना, ब्लाइंड मतलब अंधा. इट मींस द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी which I do not know about myself, but other people are noticing. एग्जाम्पल दे सकता है कोई इसका? यानी मुझे नहीं पता मेरी पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन दूसरे लोग मेरे बारे में वो नोट कर रहे हैं. एग्जाम्पल दे सकते हैं? Any example? The part of personality which I do not know about myself, but other people are noticing. हाँ मैम, प्लीज पार्डन, आपका आवाज आपका आवाज ब्रेक हुआ मैम, एक बार और कहिए. आएंगे आपके पास. आई विल कम बैक टू यू. Sir, simple example is a body language. Yes, very good madam, very good. You have given a wonderful example, like body language, right? How my hands are, my gestures and postures are going here and there, I am not able to judge, but other peoples are noticing. हम नहीं कहते कभी कभी यार आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन आपका हाथ बहुत हिल रहा था, आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन आपका पैर कांप रहा था, आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन बिटवीन 2 sentences का ब्रेक आप बहुत ज्यादा ले रहे थे. Right? The part of personality, your walking style, your dressing sense, right? These all come under the blind self. ठीक है, यानी लोग आपके बारे में नोट कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, बहुत ट्रिकी है. The third one, the hidden self. Hidden मतलब छुपाना. The part of your personality which you know about yourself, but others people do not know. It means आपके गहरे राज, है ना, जो आप नहीं बताना चाहते, यानी the part of personality which you don't want to come into the social arena, आप छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है? हिडन सेल्फ बड़ा डेंजरस सेल्फ है कि आप अपना छुपा के रखते हैं. इसके एग्जांपल आएंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना, आपने कितना एफडी आरडी बना रखा है, कितना पैसा है आपके पास. कोई पूछता है तो आप मुस्कुरा के टाल देते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कितना पैसा इकट्ठा कर लिया 4 सालों में. हम हंसते हैं, निकाल देते हैं उस बात को हंसते हंसते, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेल अवर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. इवन पेरेंट्स डू नॉट टेल देयर चिल्ड्रंस, कहीं वो मनमानी ना करने लगे, बिगड़ ना जाए, अच्छा पैसा हमारे पास है देख के, राइट? हिडन सेल्फ रखते हैं. ऐसा पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट हैं. आपके बहुत ही ज्यादा पर्सनल मैनरिज्म है, आपके बहुत सारे पर्सनल बातें हैं जो आप सोशल एरिया में नहीं आने देना चाहते. हिडन सेल्फ. And the third last one is unknown self, the part of your personality which you do not know
and other people also do not know. अब आप हंसेंगे, आप कहेंगे यार ये कौन सा पार्ट है, ना मुझे पता है मेरे बारे में, ना दूसरों को पता है मेरे बारे में. क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? एनीवन? कोई एग्जाम्पल हो सकता है? द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच आई डू नॉट नो अबाउट माई सेल्फ एंड अदर पीपल ऑल्सो डू नॉट नो. Right? This part is discovered when some events happen. For example, आप नए नए साइंटिस्ट बने, यू आर वेरी न्यू साइंटिस्ट एंड योर इंस्टीट्यूट डायरेक्टर गेव यू अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है, राइट? एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. ठीक है, एंड पीपल आर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट इवन, अरे यार आज ही तो इन्होंने साइंटिस्ट की तरह ज्वाइन किया, आफ्टर 1 week ओनली ही इज गेटिंग एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, हाउ ही विल हैंडल और शी विल हैंडल, राइट? सो अननोन सेल्फ है. बट आप डाउन द लेन उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा कर गए, यू आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, सो एवरीबडी विल कम टू नो यस यू कैन हैंडल गुड प्रोजेक्ट्स, and you also coming to know that yes I can handle a challenging situation, right? तो खोज हुई ना, ये लोगों ने भी जाना और आपके लिए भी नया था, राइट? सो दिस इज अननोन सेल्फ. अननोन सेल्फ हमेशा डिस्कवर होगा व्हेन सम क्रिटिकल चैलेंजिंग टास्क होगा आपके पास, राइट? सो दीज आर द 4 सेल्फ. सो अब सॉफ्ट स्किल्स लिखिए. अब सॉफ्ट स्किल्स यहाँ क्या सीखने को मिली? सॉफ्ट स्किल्स हमें सीखने को मिली कि वी हैव टू इनलार्ज द ओपन शेल्फ एरिया. इफ यू वांट टू हैव अ गुड पर्सनालिटी, then your open shelf should be more. Now the question comes, how your open shelf will be more? Give feedback, receive feedback. ओपन सेल्फ जब ज्यादा होगा यानी ब्लाइंड सेल्फ को कम करना है, हिडन सेल्फ को कम करना है हमने, राइट? सो ब्लाइंड सेल्फ कब कम होगा? जब दूसरों से आप फीडबैक लोगे, पूछोगे. आप स्टेज में बोल के आए और आपने लोगों के पास गए एंड यू हैव आस्क्ड हाउ आई हैव स्पोकन, प्लीज टेल मी, प्लीज गिव मी फीडबैक, प्लीज बी क्रिटिकल, टेल माय वीकनेसेस, टेल माय स्ट्रेंथ. फीडबैक लेंगे. हिडन सेल्फ कम कैसे होगा? व्हेन यू गिव फीडबैक अबाउट योरसेल्फ, you become extrovert, you goes into groups and discusses about yourself, right? So open self को हमने बढ़ाना है. ठीक है, जिनका ओपन शेल्फ ज्यादा होता है, those person who have open shelf, देखिए they are sharing, their action and words will match, they will be extrovert, they will be visionary, they will be good leaders, their acceptability will be high. For example, classical example यहाँ ओपन शेल्फ में रखिए महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी पे जब निबंध आता था स्कूल में, मुझे याद है, तो हम पहली लाइन यही लिखते थे कि महात्मा गांधी जी का जीवन खुली किताब के समान था. तो खुली किताब तो वही होगा जिसका सब कुछ पब्लिक डोमेन में है ना. गांधी जी के पास फाइनेंस कितना वो लोगों को पता, गांधी जी क्या कब सोते हैं, कब वो अपने हाथ के बने कपड़े पहनते हैं, सत्य अहिंसा में चलते हैं, राइट? एवरीथिंग पीपल वर नोइंग अबाउट गांधी जी. दैट्स व्हाई गांधी जी बिकेम फेवरेट ऑफ पीपल, बिकॉज ओपन शेल्फ ऑफ वैसी बहुत ज्यादा. जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी बहुत ज्यादा था, स्वामी विवेकानंदा, एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, देयर आर मेनी मेनी पीपल जो ओपन शेल्फ ज्यादा था. तो जिनका ओपन शेल्फ ज्यादा होगा, जिनका ओपन शेल्फ ज्यादा होगा, यानी सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है हमने कि ओपन शेल्फ को हम ज्यादा करें. तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है यहाँ पर? गिव फीडबैक, रिसीव फीडबैक. ठीक है, जिनका ब्लाइंड सेल्फ ज्यादा होगा वो रिजर्व काइंड के होंगे. ठीक है, जिनका हिडन सेल्फ ज्यादा होगा वो रिजर्व्ड होंगे, अनप्रिडिक्टेबल होंगे. जनरली क्रिमिनल्स जो ज्यादा होते हैं उनका हिडन सेल्फ ज्यादा होता है. ऑब्वियसली सोसाइटी में अलग चेहरा मेंटेन करके रखते हैं, पीठ पीछे अलग चेहरा मेंटेन करके रखते हैं, राइट? रियलिटी कुछ और होती है और चेहरा कुछ और होता है. इतना वेब सीरीज आ रहा है, आप देखते ही होंगे कि सबसे सिंपल लड़का जो वेब सीरीज में शुरू में दिखता है वही साइकोपैथ और मर्डरर लास्ट पार्ट में दिख के आता है ना. तो हिडन सेल्फ, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट. देखिए सर्वे हुआ, लोगों से पूछा गया, जिन लोगों ने इन लोगों को सुना देखा तो पता चला कि इनका ओपन शेल्फ बहुत ज्यादा था. महात्मा गांधी, विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग. सो ओपन शेल्फ. नाउ कमिंग टू द थर्ड सॉफ्ट स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स. ये अगर आपने डेवलप किया तो आप अगर अच्छे रिसर्चर हैं, इफ यू आर अ वेरी गुड रिसर्चर, इफ यू आर अ वेरी गुड प्रोफेसर, you are doing very good science, you are doing very good management, and if you have communication skills, आप छा जाएंगे, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, राइट? सोने पे सुहागा, आपने एक शब्द सुना होगा. व्हेन यू हैव सोना एंड यू ऐड सुहागा, देन ज्वेलरी बन जाती है. ये सुहागा है. कम्युनिकेशन स्किल्स इज लाइक सुहागा. सोना आपके अंदर आपका कंटेंट है, आपका साइंस है. अगर सोने पे सुहागा डालेंगे तो आपका एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आपको पसंद करेंगे लोग, राइट? सो लिखिए सॉफ्ट स्किल थर्ड, यू शुड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे विवेकानंद का हिस्टोरिकल लेक्चर 11 सितंबर 1893. Can anybody from you can tell which lecture Swami Vivekanand gave at Chicago in 1893? ये आप जानते होंगे सब लोग. Anyone? Unmute yourself and tell. 1893, which lecture Swami Vivekanand gave at Chicago?
पता है किसी को? या मैम, Hello. प्लीज. यस मैम. Sir, he started the lecture with Hindu Yes, Mahasammelan yes. like that, and he started the lecture with my American brother and Sisters. Very good, madam. Very good. Swami Vivekananda got only 3 minutes at Parliament of Religion. और भारत सरकार से उनको ऑफिशियली भेजा भी नहीं गया था, वो अपने से खुद से गए थे, बहुत स्ट्रगल के पास वहां पहुंचे. एंड द मैनेजमेंट अलाउड ओनली 3 minutes टू स्वामी विवेकानंद, एंड इन दोज 3 minutes he gave a historical speech and everybody was surprised to hear the words from Swami Vivekananda. Right, sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the cordial welcome which you have given us. बिल्कुल ऐसा कैरिस्मेटिक और ऐसा मेस्मराइजिंग उन्होंने स्पीच 3 मिनट का दिया कि एवरीबॉडी गेव हिम स्टैंडिंग ओवेशन. राइट, दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. हिस्टोरिकल स्पीच है. ऐसे आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग का स्पीच है, उन्होंने आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच दिया. ये सारे स्पीच पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को, आप इनको देख के, यूट्यूब पे ये सारे वीडियो हैं, यूट्यूब में आप देखिएगा इनके स्पीच को. बहुत ही वंडरफुल स्पीच है. महात्मा गांधी जी का क्विट इंडिया स्पीच, देन सुभाष चंद्र बोस जी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा स्पीच. राइट, वेरी वंडरफुल स्पीच. सो नाउ हाउ टू नर्चर दिस सॉफ्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप. there are 3 important elements which makes your communication effective. The first one is comprehension. How much clarity? So comprehension comes when you have clarity, and clarity comes when you have a very good communication on your subject matter. अपने सब्जेक्ट मैटर में अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लियर है अपने सब्जेक्ट मैटर में, अपने साइंस में, जैसे आप डेयरी साइंसेस के हैं, डेयरी साइंसेस में अगर आप कोई भी आपका जो डिसिप्लिन का एक्सपर्टीज होता है उसमें अगर आपका फुल कमांड है तो आपकी क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट. राइट, नाउ वंस यू हैव क्लैरिटी, देन सेकंड पॉइंट व्हिच यू नीड फॉर हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वैलिडिटी. सेकंड, वैलिडिटी होना चाहिए, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, यानी आप जो कहते हैं वही करते हैं, यानी एक्शन शुड मीट द एक्शंस, यानी वर्ड शुड मीट द एक्शंस. यानी आप कहते हैं कि सत्य बोलो, उसी व्यक्ति का सत्य बोलो सुना जाएगा जो व्यक्ति जीवन में सच में सत्य बोलेगा. विवेकानंद सेड रेगुलरली मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर. उन्होंने कहा आधे घंटा रोज मेडिटेशन करना चाहिए. लोगों उनकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू मेडिटेट एवरी डे, है ना. मैं कहूंगा कि रोज सुबह 5 बजे उठो और मैं रोज सुबह 8 बजे उठ रहा हूं, तो मैं कैसे कह पाऊंगा कि सुबह 5 बजे उठो? मैं कितना भी अच्छे से बोलूं, कितना भी इफेक्टिव बना लूं अपना कम्युनिकेशन, अगर मैं खुद 5 बजे नहीं उठता हूंगा, मैं कितना भी अच्छी इंग्लिश में बोल दूं कि इसको 5 बजे उठो, नोबडी इज गोइंग टू ओबे माय लेक्चर बिकॉज एवरीबॉडी नोज दैट मैं खुद तो 8 बजे उठता हूं. यानी द टीचर्स हु आर ऑलवेज लेट इन देयर क्लासेस, दे कैन नेवर टीच देयर स्टूडेंट टू बी ऑन टाइम. आप 11 बजे की क्लास में खुद 11:15 बजे पहुंच रहे हैं और आप कैसे कहते हैं बच्चों को कि 11 बजे टाइम से बैठा करे क्लास में? नहीं, कोई नहीं सुनेगा आपको. राइट, सो सेकंड इज वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है. थर्ड इज यूटिलिटी. द कंटेंट विच यू आर स्पीकिंग, दैट कंटेंट शुड हैव पॉइंट ऑफ रेलेवेंस, यूटिलिटी फॉर द ऑडियंस. ऑडियंस को अगर यूटिलिटी मिलती है आपके पॉइंट से तो आपकी बात सुनी जाएगी. और हमारे केस में साइंस में तो सबसे ज्यादा ये होता है, किसान हमारी बात तभी सुनता है जब हमारी टेक्नोलॉजी में दम होता है, हमारे कंटेंट में उसके लिए यूजफुलनेस होती है. फॉर एग्जांपल, खरीफ सीजन इज गोइंग, राइस सीजन. सो इफ आई एम गोइंग इनटू अ विलेज सेमिनार एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हीट वेराइटीज ऑफ IRI, सो नोबडी इज इंटरेस्टेड. वो सुन लेंगे, चाय पी लेंगे, समोसा खा लेंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब आपने व्हीट तो बताया लेकिन रबी में बताना चाहिए था, आपने अभी तो धान की बात करनी चाहिए थी. राइट, यूटिलिटी नहीं मिली. So utility should be there, validity, credibility should be there, and clarity of your subject matter. ये 3 आपके अगर मिल गए तो आप एक बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएंगे. तो ये देखिए, इसको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दोनों की सॉफ्ट स्किल्स आपको चाहिए. स्पोकन में, रिटर्न में आपको रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, पॉपुलर आर्टिकल, बुक चैप्टर, ये तो आप कर ही रहे होंगे लाइफ में. ये रिटर्न की स्किल्स चाहिए. इसको अगर मैं ऐसे कर लूं, वर्बल और नॉन वर्बल को क्लासिफाई कर दूं, सो द सॉफ्ट स्किल्स विच यू नीड, you should have a very good command over the subject knowledge. This is not a soft skill, but it is a prerequisite. Language command, you should have a command over language. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was knowing more than 15 languages, more than 15 languages he can read and he can write. इतना language का उनको knowledge था. So language command, whether it's in Hindi, English or any of your mother tongue,
if you are giving a lecture on that language, you should have a very good command over this language. Then comes the soft skills of tone and pitch. When you are taking your tone high, when you are increasing the pitch. Okay, when I am saying that in 2050 I want to see India as a developed nation, now I am saying this line like this: in 2050 I want to see India as a developed nation. This will not make an impact. If I am saying this line like this, in 2050, yes, I want to see my country India as a developed nation, so it will make a sense. ठीक है, या और समझना है तो जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अनुपम खेर, है ना, आपके हमारे आ जाते हैं, अनुपम खेर का बहुत अच्छा है, मनोज वाजपेयी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेन्ड एक्टर है। तो इनका एक्टिंग देखिए, तो आप जब इनका देखेंगे डायलॉग डिलीवरी देखेंगे तो कैसे वो टोन, कैसे वो पिच को लेके आते हैं और कैसे वो जान भर देते हैं स्क्रीन में, राइट? सो दैट टोन एंड पिच आर इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब आप कहेंगे कि सर ये टोन और पिच कैसे सीख सकते हैं? नाउ जो द प्रैक्टिस विच आई एम डूइंग इज, कहीं मुझे अगर बोलना होता है तो मैं अपनी स्क्रिप्ट जब बना लेता हूं, सो आई हैव टू कलर्स पेन, रेड एंड ग्रीन। तो रेड में जहां पर मुझे एम्फेसिस देना होता है वहां पर मैं रेड करता हूं, जहां पर मुझे लो पिच में जाना है वहां पर मैं ग्रीन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम सेइंग एनी इमोशनल पॉइंट that my country is a great country, but yes, 30% of my country is still poor. So when I'm saying 30% of my country still belong to below poverty line, so here my pitch will go down, my sorrow should come, and I want to see my India as a developed nation. Here I will raise my tone, right? So that modulation, that tone and pitch are very important. Connecting with the audience, like putting emotions, right? Emotion does not mean you have to cry, you have to laugh at a stage, on a stage, but connecting with the audience is very important. So verbal communication, इसमें तो पूरा हम वर्कशॉप कराते हैं, हमारा IRI में हम फुल फ्लैगशिप इसमें वर्कशॉप करते हैं पूरा स्टूडेंट्स के साथ, बड़ा इसमें मजा आता है, बहुत अच्छे इसका प्रैक्टिकल भी होता है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स क्या है? आपकी बॉडी मूवमेंट्स, जैसे पोस्चर, मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं लेकिन हैंड मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल हाथ नहीं हिल रहे होते हैं, एकदम मूर्ति की तरह बोलते हैं, तो फिर आनंद नहीं आता। जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, डिसीजन, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, यानी मुंह से बिना कोई शब्द के बोले हुए भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं विद आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली? यस और नो? Yes, sir. Yes. Can you give any example of any personality without saying any word they communicate effectively? Any example? No idea, sir. क्यों? आपने देखा हो चार्ली चैपलिन? चार्ली चैपलिन, मिस्टर Yes, sir, बीन, yes. आजकल बच्चों के फेवरेट है मिस्टर बीन, है ना? कहीं बोलते हैं? चार्ली चैपलिन ने अपनी पूरी मूवीज में कहीं नहीं बोला आज तक, राइट? एंड द वे ही यूज्ड टू यूज हिज बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, है ना? आप उनका वीडियो देखिए एंड यू विल लाफ, है ना? इतना हंसेंगे आप। सर एक पुष्पक फिल्म आई थी, पुष्पा फिल्म आई थी पहले, पुरानी। अच्छा, ये नई वाली पुष्पा कह रहे हैं? आलू अर्जुन वाली है, पुरानी है, जूनियर पुराने वाले पुष्पक जी। अच्छा, मूवी का नाम क्या था? पुष्पक। अच्छा, हु वाज द साउथ हीरो? से थी, अच्छा, साउथ इंडिया की थी। ओके, हु वाज कमल द? हसन। अच्छा, कमल हसन, उसका पक्का हिंदी वो रीमेक? रईस आदमी का वो। अच्छा अच्छा, ग्रेट, चलो मैं देखूंगा, मैंने देखी नहीं है उनका तो। कमल हसन का मैंने, बहुत बढ़िया फिल्म थी। कमल हसन इज अ ग्रेट एक्टर, और उनका हमने एक मूवी देखा श्रीदेवी के साथ, देखा है बचपन में, सदमा वाज द मूवी। द एक्टिंग ही हैज पुल्ड आउट इन दैट मूवी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग, है ना? राइट? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन आर परफेक्ट एग्जांपल विदाउट having a word. So sometimes your movements are more important and they convince more than verbal communication. So ये soft skills है कि आपको अपना इम्पैक्ट लेना है तो नॉन वर्बल भी होना चाहिए, वर्बल भी होना चाहिए, 40 to 45% वर्बल होना चाहिए, 55 to 60% नॉन वर्बल होना चाहिए, तब आपका ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप एक दो पर्सनालिटी का नाम दीजिए जो आपको, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनका बोलने का तरीका आपको अच्छा लगता है, जिनको यूट्यूब में सुनते हैं आप, सोशल मीडिया में सुनते हैं, दीजिए एग्जांपल। ध्रुव राठी। हाँ, ध्रुव राठी अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। सदगुरु का आपने पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू फॉलो हिम और नॉट, लेकिन फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? कितना कूल एंड कामली हैंडल करते हैं कोई भी क्वेश्चन को, द वे ही पुट आउट द वर्ड्स,
है ना, वो भी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तरीके से करते हैं। एंड मुझे पुराने राजनेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर, और पॉज लेते थे बीच में, और उन पॉजेस में इंतजार करते थे लोग अगला लाइन क्या होगा अटल जी का, राइट। So there were many stalwart. Abdul Kalam ji has his own style of speaking, है ना? So there are many people, many great stalwarts who speaks it, and there are barriers of communication which you have to understand. So it's a only 1 hour lecture. So मैं हल्का से इसको टच करता हूँ कि सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अच्छा ये सारे बैरियर्स आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है हमें, द बैरियर विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड दे आर साइकोलॉजिकल बैरियर कौन से? फियर। सबसे ज्यादा आप जानते हैं 70% ऑफ द पीपल डू नॉट कम्युनिकेट बिकॉज दे हैव अ फियर टू कम्युनिकेट। उनको लगता है अरे यार हम मंच से बोलेंगे तो हमारी हंसी उड़ जाएगी, क्या कहेंगे लोग, है ना। एक हिंदी में कहावत है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो if you have a fear of speaking, so it is the most powerful barrier. You will not never participate in these type of things, और participate नहीं करेंगे तो ये सॉफ्ट स्किल आपका डेवलप नहीं होगा। एंगर कोई मुझे बता सकता है? एंगर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। हाउ? एंगर मतलब जब हम गुस्सा होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो जब हम क्रोध में होते हैं, व्हेन वी आर एंग्री, वी शुड कम्युनिकेट और वी शुड स्टॉप कम्युनिकेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। बताइए, जब आपको Stop communicating during anger. यस, बिल्कुल सही कहा सर ने। इट्स प्रूवन whenever you are angry, अपने पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, because when you are angry you do not have control over words, you do not have a control over your actions। ठीक है, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूं एंड यू विल बी सरप्राइज। आपको पता है एक स्टडी हुई सिगमंड फ्रेड ने की, अमेरिका में जेल में जो बंद थे, द क्रिमिनल्स, हीनियस ऑफ द हीनियस क्राइम में जो क्रिमिनल्स जेल में बंद थे, है ना, मर्डर, ट्रिपल मर्डर चार्ज में, उस पे स्टडी किया सिगमंड फ्रेड ने और एक सर्वे किया, और उन्होंने पाया, ही फाउंड आउट दैट ऑल द क्रिमिनल्स, आउट ऑफ ऑल द क्रिमिनल्स 60% ऑफ द क्रिमिनल्स आर गुड पीपल। उन्होंने पाया कि 60% लोग ऐसे लोग हैं जो जनरली इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकते। तो अब अगर इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकते तो व्हाई दे हैव डन दैट क्राइम? एनी आंसर्स फ्रॉम योर साइड? It is because of anger only. एंगर ओनली, हीट ऑफ मोमेंट इसको कहते हैं ना। कभी कभी आप अपने पर्सनल लाइफ से कोरिलेट कीजिएगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम भी है उसके अंदर आते हैं, इंसान ही है, हर कोई इंसान है। तो जब हमें बहुत अत्यधिक गुस्सा आता है, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने कोई चीज की कीमती चीज तोड़ दी, मान लीजिए यू आर मेकिंग अ प्रपोजल, है ना, बच्चा ने आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया, आपका लैपटॉप गिरा दिया या कुछ कर दिया, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो उस समय आप गुस्से में उस पर हाथ भी उठा देते हो, छोटा बच्चा मान लो 7-8 साल का, आपने उसको एक जोर का चांटा लगा दिया। चांटा तो आप लगा देते हो, डांट देते हो, शाउट करते हो, वो बेचारा डर के बैठ जाता है। लेकिन जब समय बीतता है, एट इवनिंग हाउ यू आर फीलिंग एज अ फादर, क्या फील आएगा आपके मन में? 6-7 घंटे बाद क्या होता है बताइए, शेयर कीजिए थोड़ा सा, इसको बढ़ाइए। हाँ मैम। regret यस, इन इवनिंग में मुझे ऐसा लगेगा कि यार बच्चा ही तो था, मैंने हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था, है ना, कम से कम डांट लेना चाहिए था, या बच्चा ही तो है, ये नहीं करेगा तो ऐसा कोई अडल्ट थोड़ा ना करेगा, एनी 30-40 इयर्स का आदमी आके थोड़ा मेरा लैपटॉप गिराएगा, बच्चा ही तो गिराएगा, ये मन में विचार आएगा ना। दीज टाइप ऑफ थॉट्स विल कम दैट ही इज अ चाइल्ड ओनली, राइट। एंड यू नो अल्बर्ट आइंस्टाइन का, आपको पता होगा ये स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी में मैंने कहीं पढ़ा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिए थे, उसके कुत्ते ने, इसके डॉग ने या उसकी बिल्ली ने मोमबत्ती गिराती उन कागजों के ऊपर, वो जल गए सारे के सारे कागज उसके। ही बिकेम वेरी एंग्री, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज ही नो soft skills. So always when you are angry, when you have anxiety, when you have fear, do not communicate. बिल्कुल, आपको कभी गुस्सा आ जाए, हद से ज्यादा आ जाए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एक बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल सिखाता हूं मैं आपको, दो यू आर सीनियर टू मी एंड यू हैव मोर एक्सपीरियंस, बट स्टिल यस, रेइनफोर्स करेगा आपको, आप अपनाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। आप उस सिचुएशन से हट जाइए। द बेस्ट रेमेडी ऑफ एंगर, एंजाइटी, फियर इज यू लीव दैट सिचुएशन। आपको गुस्सा आ गया, अब आप बहुत सारे अच्छे टीचर्स, व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट पन्नगर, देयर वाज वन टीचर फ्रॉम सोशल साइंस। वो क्लास में जब हम हंगामा ज्यादा करते थे और शैतानी ज्यादा करते थे, तो वो टीचर क्या करते थे, डांटते नहीं थे, वो क्लास छोड़ के चौक लेके निकल जाते थे। ही केम, हमने मान लीजिए बहुत हंगामा किया क्लास में, एंड ही बिकेम एंग्री, वो बड़ी बड़ी आंखों से देखते थे, एंड जस्ट ही लीव द कॉम्प्लेक्स, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने कैबिन में चले जाते थे। एंड दैट इंपैक्टेड अस मोर रादर देन स्कोल्डिंग। हमें बहुत बुरा लगता था पूरी क्लास को कि यार सर चले गए ऐसे, और अगली क्लास में जब आते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता।
So anger, when you are anger, you leave the place, you leave the situation. This is very important soft skill. Stereotyping क्या होती है, कौन बताएगा? फिर आगे बढ़ जाते हैं, हम समरी में आ जाएंगे. Stereotype भी लिखा है मैंने साइकोलॉजिकल बैरियर्स में. Stereotyping. Anyone have an idea of stereotyping? कहीं सुना है किसी ने? सर मैम आपने कहीं शब्द सुना है स्टीरियोटाइप? अंडर साइकोलॉजिकल बैरियर देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा ना व्हाइट कलर से, स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइपिंग इज when you are generalizing the fact about certain people. For example, मैं आपको stereotyping का perfect example देता हूँ. For suppose हम बिना किसी state का नाम लिए एक example ले लेते हैं कि suppose a person coming from a particular state becomes my room partner. ठीक है, MSc में मान लीजिए. ठीक है, and now my experience with that person is not good. अब मेरा stereotyping क्या होगा लाइफ में कि person belonging to such state are like this only. है ना, समझ रहे हैं आप बात को? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें? अब आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्टीरियोटाइपिंग क्या है? यानी ये लोग इस स्टेट से जो लोग बिलोंग करते हैं ये इसी तरह के होते हैं, हम नहीं बना लेते बहुत सारे. ठीक है, जनरली एक और स्टीरियोटाइपिंग है, लेडीज विल कनेक्ट मोर विद मी, कि लेडीज ड्राइविंग अच्छा नहीं करते. अगर आपको कोई कार चलाता हुआ लेडी दिख जाए सामने से तो यहाँ लोग सतर्क हो जाता है, अरे बाप रे लेडी गाड़ी चला रही, बच के चलो बच के चलो. ये स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग मींस जनरली एक दो घटनाएं ऐसी हुई होंगी लेकिन हमने जनरलाइज कर दिया, हमने जनरलाइज कर दिया. ठीक है, इस स्टेट के लोग ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं. तो आपके घरों में कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? स्टीरियोटाइपिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क का भी स्टीरियोटाइपिंग हो गया है, घर के कामकाज का भी स्टीरियोटाइपिंग होता है. कम्युनिटी साइंस में पढ़ते हैं, कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल? स्टीरियोटाइपिंग इन हाउस होल्ड वर्क. एनीवन गेटिंग एन आइडिया? कोई पॉइंट आ रहा है मैम? अनम्यूट कीजिए और बताइए प्लीज. वेरी कॉमन थिंग इज देयर, सास को कभी बहू के किया हुआ काम तो राइट राइट. ठीक है, जैसे अब घर में आप बीइंग अ जेंट्स मान लीजिए आप कुछ काम करने लगे किचन का, तो हो सकता है कोई व्यक्ति जो स्टीरियोटाइपिंग से ग्रसित हो कह दे अरे ये तो लेडीज का काम है, आप क्यों कर रहे हो? है ना, मान लीजिए कोई लेडी सामान लाने लगे दुकान से, कहेंगे ये तो है ना जेंट्स का काम है, आप क्यों कर रहे हो? स्टीरियोटाइपिंग. दिस इज स्टीरियोटाइपिंग. दिस इज अगेन अ बैरियर इन कम्युनिकेशन. सो गॉड ने जितने भी काम बनाए दुनिया में, कोई भी छोटा और बड़ा काम नहीं है, हर काम का अपना एक वैल्यू है. अगर घर में बर्तन नहीं साफ होंगे, खाना नहीं बनेगा, तो आप ऑफिस नहीं कर पाएंगे अच्छे से. हर वर्क का एक इंपॉर्टेंस है, हर वर्क का एक वर्थ है. ठीक है, सो इट्स स्टीरियोटाइपिंग कभी लाइफ में नहीं होनी चाहिए. दैट इज अ सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल है, कभी भी स्टीरियोटाइपिंग ना करें और ना करने दें. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम आते हैं, लास्ट पार्ट है, 5 मिनट्स में आपके लूंगा, देन हम 5 मिनट इसमें डिस्कशन कर लेंगे कि अब आप कहेंगे कि सर आपने इतनी सारी चीजें बताई, अब इसको लाइफ में कैसे उतारे. सबसे पहला, यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. आप कितने भी ज्ञानी ध्यानी बन जाएं, कितने भी अच्छे रिसर्चर बन जाएं, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है लाइफ का तो आपका कुछ नहीं होगा. ये बगल में मैंने एक पिक्चर लगाई है एक लेडी का. कौन है ये लेडी? पहचान रहे हैं इनको? Who will tell me who is this lady? कैप पहना है, पाँव देखिए, स्पेशली एबल्ड वुमेन है. Any one of you can identify this lady? कोई पहचान पा रहे हैं? Right? She is Arunima Sinha. How many of you have heard his name, her name? Have you heard about Arunima Sinha? Yes or no? मैं थोड़ा सा बता दूं नहीं तो फिर Yeah. आपको. Yes, ना? sir. राइट. एवरीबडी नोज. अब तो पद्मश्री मिला है इनको, एवरीबडी नोज नाउ. राइट. सो कुछ बदमाशों ने इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया. तो ट्रेन से बाहर जब इनको फेंका, सो सी लॉस्ट हर बोथ लेग्स. है ना, एक लेग तो पूरा ही चला गया, दूसरा तो रिकवर कर गए, लेकिन एक पैर चला गया. एंड सी वाज अ स्पोर्ट पर्सन. है ना, बास्केटबॉल और बहुत सारे गेम्स में अपना नाम बनाना चाहते थे. तो इन्होंने डिसाइड किया, पॉजिटिव एटीट्यूड था लाइफ का, एंड सी डिसाइडेड कि चलो मैं स्पोर्ट्स में नहीं कर पाई बट मैं एक पर्वतारोही बनूंगी. एंड सी हैज क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट नॉट 1 टाइम, 2 टाइम्स, डिस्पाइट दैट 1 लेग इज स्पेशली एबल्ड लेग. है ना, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. ठीक है, व्हेन यू हैव चैलेंजेस बट स्टिल यू कैरी द पॉजिटिव एटीट्यूड. सो फर्स्ट पॉइंट जो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. सेकंड देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोशल इंटरेक्शन. ये बुक से लिया है मैंने अपने मन से नहीं बनाया. बहुत सारी साइकोलॉजी के बुक्स के बाद मैंने पीपीटी डिजाइन किया आपके लिए. सोशल इंटरेक्शन नाउ डेज इज कम हो गया. अभी सोशल इंटरेक्शन सर कम हो गया, मैम कम हुआ. क्यों हुआ कम सोशल इंटरेक्शन?
अभी आपको क्या लगता है, सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी में कम है कि ज्यादा है? एनी इनसाइट्स बताइए. सोशल इंटरेक्शन इज लेस और मोर, एंड इफ इट इज लेस, व्हाई? ऑनलाइन ज्यादा है सर। यस, बिल्कुल सर ने सही बात पकड़ी, क्योंकि अब हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स हो गए, है ना? फेसबुक में आई हैव 3000 फ्रेंड्स, बट इन रियलिटी आई एम नॉट गेटिंग इवन 2 फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी आउट इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, राइट? सो दिस वाज द लाइफ बिफोर इंटरनेट. मैं पीपीटी शेयर करूंगा तब देखिएगा आप. और इंटरनेट ने हमें किस तरह का लाइफ दिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस. कुछ फायदा भी है, लाइक हम ऑनलाइन ये मीटिंग कर पा रहे हैं. हर बार फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल होता है, ट्रैवल करना मुश्किल होता है. वीडियो मॉड्यूल्स, कोचिंग, एजुकेशन सब ऑनलाइन चल रहा है, तो सिर्फ बच्चों को फायदा मिल रहा है. दैट इज पॉजिटिव साइड, बट नेगेटिव साइड आल्सो इज देयर. सेकंड, ठीक है, ये देखिए, एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ. बिल्कुल सही बात है, राइट? सो इफ यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट हैव बडीज टू चीयर अप, अपने दिल की बातें करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आने लगता है, राइट? थर्ड इज you should cultivate hobbies. For soft skills, you should have hobbies. पहले hobbies होती थी reading, writing, है ना? Poem, sketching, painting, right? So how many books versus how many apps? How many poems versus how many posts? How many smiles versus how many likes? How many plants versus how many gadgets? So this is very very important कि आप ये अपने जीवन में करें. एंड वर्किंग ऑन योरसेल्फ, प्रैक्टिस करें, पार्टिसिपेट करें, रेगुलर फीडबैक करें, चैलेंज करें. कन्वर्ट योर एंटरटेनमेंट इनटू इंफोटेनमेंट. हम इधर उधर की बातें ना देख के सिलेक्टिव हो, है ना? अच्छी मूवीज देखें जिनसे एंटरटेनमेंट भी हो जाए और जिनसे सीखने को भी मिले. दीज टू आर मूवीज. आपने बताइए, एनीवन हु हैज सीन दिस मूवी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी और द ग्रेट डिबेटर्स? एनीवन? इफ यू हैव नॉट सीन, तो पावर पॉइंट में शेयर कर दूंगा, ये मूवी जरूर देखिए आप, बहुत अच्छी मूवी है, राइट? सो यहाँ पर हम एंड करते हैं. थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन भी करना चाह रहा हूँ, राइट? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो let's wrap up this session and feel free to ask any question. Now I'm opening my camera, so you can have any interaction. 5 minutes are still left. Dr. Neeta Mishra ji, yes. Dr. Neeta Mishra ma'am, you have raised your hand. So we have 48. Yes. Yeah, ma'am. It hap- Sir, उस condition में suppose we are having regret for anything, then how we can overcome from that?